آج صبح دن کا آغاز تو بہت اچھا تھا، مگر اس دن کا انجام کافی دردناک ہوا۔ اور میں یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو بخوبی اس ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا۔ گھر سے تیار ہو کر میں اپنے کام کے لیے روٹین کے مطابق پیدل ہی گھر سے نکلا اور بس اسٹاپ پر پہنچا۔ پہلے تو مجھے جو سب سے آگے وین لگی ہوئی تھی اس میں جگہ نہ ملی۔ اس کے بعد والی وین میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا اور کوئی سواری ابھی سوار نہیں ہوئی تھی۔ خیر، وہ سفر جلد ہی اختتام پذیر ہوا اور میں اپنی پہلی منزل پر پہنچا۔ اس بڑی بس میں سوار ہو کر مجھے قصور کا سفر طے کرنا تھا، مگر کچھ دیر بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس ڈرائیور کا سفر کرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں، لہٰذا میں نے وہ بس تبدیل کر لی اور ایک دوسری وین میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک کوسٹر تھی جو فل بھی جلدی ہو گئی اور جلد ہی اس کا سفر بھی سٹارٹ ہو گیا۔ اب وین تیزی سے آگے بڑھنے لگی اور فاصلہ کم ہوتا گیا۔ آج کافی گرمی تھی، مگر اب بس چلنے کی وجہ سے کافی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی اور اب مسافر بھی ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد یہ بس آخر کار قصور پہنچی اور میں رکشے میں سوار ہو کر اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ صوفی بزرگ اور شاعر بابا بلے شاہ کی وجہ سے یہ شہر خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ بابا بلے شاہ کا دربار شہر کے اندرون واقع ہے۔ یہاں پر ایک خاص قسم کا فالودہ تیار کیا جاتا ہے جو کہ قصوری فالودہ کے نام سے بہت مشہور ہے۔ رکشہ سے اتر کر میں سبز منڈی پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت مسجد، اسی کے سامنے ہمارا ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ موجود ہے۔ یہ ہول سیل کی کافی بڑی شاپ ہے۔ اس کے بعد ہم کاروباری معاملہ طے کرنے کے بعد ڈسٹریبیوٹر کے ہمراہ اپنی مارکیٹ کے لیے نکل پڑے۔ یہ کافی بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر سینکڑوں دکانیں موجود ہیں۔ مارکیٹنگ کا یہ سلسلہ شام تک یوں ہی جاری و ساری رہا۔ واپسی پر میرے ڈسٹریبیوٹر نے گھر کے لیے کچھ سبزیاں خریدی۔ یہاں پر سبزیاں کافی اچھی خاصی مقدار میں اور بہت ہی مناسب ریٹ میں موجود تھی۔ ہماری مارکیٹ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ واپسی پر میں نے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو کہا کہ مجھے آپ چاندنی چوک تک ڈراپ کر دیں۔ سارا دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اب چائے کی بہت شدید قسم کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ڈسٹریبیوٹر نے مجھے چاندنی چوک ڈراپ کر دیا تھا، مگر میں کوئی چائے کا بہت اچھا سا ہوٹل ڈھونڈ رہا تھا جہاں پر کوئی اچھی سی چائے پی جائے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے اچھا تو نہیں مگر چائے کا ہوٹل ضرور مل گیا جہاں پر چائے اویلیبل تھی۔ چائے پینے کے بعد میں چاند گاڑی میں سوار ہوا اور سینما موڑ کی طرف چل پڑا۔ رکشہ سٹارٹ ہوا اور شہر کی مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا سینما موڑ کی طرف چل پڑا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو یہاں کی سب سے مشہور فالودہ شاپ کا وزٹ کرواؤں، مگر ٹائم کی شارٹیج کے باعث مجھے یہ پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ رکشہ والا نے ایک جگہ رک کر پمپ سے تیل ڈلوایا اور دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ 10 منٹ کی مزید مسافت کے بعد آخر کار ہم لوگ سینما موڑ پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا تو ایک ویگن بالکل تیار تھی، مگر وہ سواریوں سے مکمل طور پر فل ہو چکی تھی۔ اگلی وین بالکل خالی تھی اور اکا دکا سواریاں ہی اس میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب آہستہ آہستہ اس وین میں سواریاں آ کر بیٹھنے لگی تھیں۔ آخر کار وین کی سواریاں مکمل ہو گئیں اور یہ اپنی منزل یعنی رائے کی طرف چل پڑی۔ تقریباً 45 منٹ کے بعد ہم لوگ رائے پہنچ گئے۔ یہاں سے اتر کر میں رکشہ کے ذریعے سے اسٹیشن کے ساتھ ملحقہ نیو کوئٹہ پٹھان ہوٹل پر پہنچا۔ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے چائے پی جائے اور 1-2 ٹیبلٹ وغیرہ کھا لی جائے تاکہ باقی کا سفر آسانی سے گزر سکے۔ لہٰذا میں نے 2
डिस्प्रिन की टैबलेट पानी में घोलकर पी ली और साथ ही एक कप चाय पीकर मुझे काफ़ी इफाका हुआ। यहाँ की चाय बहुत ही शानदार है। ये होटल रायवन स्टेशन के बिल्कुल साथ ही वाक़या है और मैं यहाँ पर अक्सर औकात आता रहता हूँ। चाय पीने के बाद मैं स्टेशन की तरफ बढ़ा। यहाँ से मुझे अपने शहर उकाड़ा तक का सफ़र बाय ट्रेन करना था। तेज़ कदम उठाता हुआ मैं स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी और ये स्टेशन इस वक्त किसी पुरानी हवेली या तकरीबन किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा था। मैं स्टेशन की मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल हुआ और टिकट घर की तरफ बढ़ने लगा। स्टेशन पर बहुत कम लोग मौजूद थे। मैंने पता किया था ट्रेन काफ़ी लेट थी, इसलिए मैंने टिकट नहीं ख़रीदा और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। मेरा प्लान ये था कि चूंकि अभी गाड़ी आने में बहुत टाइम था तो मैंने सोचा कि ज़रा रिलैक्स होकर टिकट ख़रीद लेंगे। इसी दौरान एक और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और मैं इस ट्रेन के पीछे से होता हुआ दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। कुछ देर बाद वो ट्रेन तो वहां से रवाना हो गई मगर अपने पीछे छोड़ गई मुकम्मल अंधेरा। इस वक्त मेन प्लेटफॉर्म के अलावा बाकी तमाम स्टेशन पर मुकम्मल अंधेरा था, जो बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। सिर्फ दूर एक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि इसकी तरफ ही चलते हैं। रोशनी की तरफ जाते हुए मुझे रास्ते में एक बेंच नज़र आया तो मैंने सोचा कि इस पर ही बैठ जाते हैं, मगर कुछ देर बैठने के बाद ही मैं वहाँ से चल पड़ा क्योंकि पीछे मुकम्मल अंधेरा था। और अब मुझे सच में डर लगने लग गया था। ये ना हो कि कोई पीछे से आकर मुझे पकड़ ले और मुझे मार कर मेरा सामान छीन ले या कोई और हादसा ना पेश आ जाए। यही सोचकर मैं यहाँ से उठा और उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगा जो मुझे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई पहली दफ़ा आया था, मैं यहाँ पर अक्सर औकात आता रहता हूँ, लेकिन इस वक्त चूँकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और स्टेशन पर बहुत कम लोग मौजूद थे, इसलिए मुझे यहाँ पर डर सा महसूस हो रहा था। यहाँ पर एक पानी का इंतज़ाम था। मैंने यहाँ से अपने हाथ धोए और 1-2 घूंट पानी भी पिया। हाथ धोने और पानी पीने के बाद मैं उस लाइट की तरफ बढ़ गया जो आगे चलकर एक बहुत ही अच्छे टी स्टॉल में तब्दील हो गई। यहाँ पहुँचकर मुझे एक ज़हनी सुकून महसूस हुआ क्योंकि एक तो यहाँ पर लाइट मौजूद थी और कुछ लोग भी मौजूद थे जो एक दूसरे से गपशप कर रहे थे। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारे बेंचेस खाली पड़े हुए थे। इस टी स्टॉल पर हर तरह के बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चाय, हर चीज़ अवेलेबल थी, मगर मेरा कुछ भी खाने को या पीने को मूड नहीं हो रहा था। मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता था। इस वक्त रात के 9 के करीब का टाइम था। इस गाड़ी का टाइम रायमंड पहुँचने का 7:45 का फिक्स्ड था और मेरे हिसाब से ये गाड़ी 2 घंटे लेट थी। इसका मतलब है कि इसको 9:30 बजे तक यहाँ पर होना चाहिए था, मगर मुझे यहाँ आकर पता चला कि ये गाड़ी 2 घंटे नहीं 3 घंटे लेट है। इसका मतलब 10:30 बजे इस गाड़ी ने यहाँ पर पहुँचना था। इस वक्त चूँकि 9 बज रहे थे तो इसका मतलब 1.5 घंटा मुझे मज़ीद अभी इस स्टेशन पर गाड़ी का इंतज़ार करना था, जो कि मेरे लिए बहुत ही तशवीशनाक बात थी। क्योंकि अगर गाड़ी 10:30 बजे यहाँ पर पहुँचती है तो 1 से 1.5-2 घंटे का सफ़र, इसका मतलब है कि मैं 12 या 1-2 बजे के करीब ही घर पहुँच सकता था, जबकि इस स्टेशन पर बैठना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान लाहौर की जानिब जाने के लिए एक गाड़ी स्टेशन पर आई और चली गई और उसके बाद फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी जगह तब्दील की क्योंकि मुझे वहाँ पर गर्मी लग रही थी और यहाँ पंखा चल रहा था। यहाँ बैठकर मुझे कुछ राहत मिली। मेरा दिल कर रहा था कि जब तक गाड़ी नहीं आ रही मैं इस बेंच पर सो जाऊं, मगर एक अनजाने खौफ की वजह से मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। अब स्टेशन पर 1-2 लोग ही मौजूद थे और टी स्टॉल पर कुछ लोग चाय वगैरह पी रहे थे। जब मुझे पता चला कि गाड़ी में भी मज़ीद वक्त है तो मैंने अपनी टांगें ऊपर की और ज़रा रिलैक्स होकर बैठ गया। मेरी बाईं जानिब बहुत अंधेरा था और सामने एक ट्रेन खड़ी हुई थी जो कहा जाता है कि किसी वक्त में हादसे का शिकार हुई थी और बहुत सारी कीमती जानें
इस हादसा में चली गई थी। ये ख्याल आते ही मुझे और डर महसूस होने लगा और इसी दौरान लाइट चली। ये सोने पर सुहागा हुआ कि पूरे का पूरा स्टेशन ही अंधेरे में डूब गया। आप यकीन करें कि मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहा, मगर ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। मजबूरन मुझे वहाँ से उठना पड़ा और मैं एक और जगह पर जाकर बैठ गया। ये एक खाली प्लॉट था, मगर यहाँ पर लाइट मौजूद थी और तबलीगी जमात वाले यहाँ पर अपनी जमात का दर्स दे रहे थे। रायगढ़ में आप जानते हैं कि हर साल बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा होता है और यहाँ पर तबलीगी जमात के लोग आते जाते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और एक बहुत बड़ा स्टेशन है, मगर इस वक्त ये सारे का सारा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसी दौरान सिर्फ मेन प्लेटफॉर्म पर लाइट आ गई और मुझे कुछ हौसला हुआ, मगर इसके अलावा सारे का सारा स्टेशन अभी तक अंधेरे में गर्क था। इसके बाद मज़ीद 1 से 1.5 घंटा मैं यूं ही स्टेशन पर कभी इधर और कभी उधर धक्के खाता रहा। खैर कुफर टूटा खुदा खुदा कर और ट्रेन आ गई। 5 से 4 मिनट रुकने के बाद धीरे धीरे ये ट्रेन मेरे शहर की तरफ बढ़ने लगी और मेरा आज का ये अज़ियतनाक सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला था। इस सारे मसले के दौरान सिर्फ एक ही काम अच्छा हुआ कि मुझे खिड़की की तरफ बैठने के लिए सीट मिल गई। जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफार्म को छोड़ रही थी, मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था। मैंने आज उकाड़ा से दीपालपुर, दीपालपुर से कसूर और फिर कसूर से रायगढ़ और अब मैं वापस उकाड़ा अपने शहर की तरफ जा रहा था। मैंने आज काफ़ी थका देने वाला दिन गुजारा था और इस वक्त आकर मेरे मोबाइल की बैटरी भी मेरा साथ छोड़ने वाली थी। मेरा मोबाइल कुछ ही देर में ऑफ होने वाला था। इसके बाद ट्रेन की रफ्तार कुछ तेज़ हुई और ट्रेन ने प्लेटफार्म को पीछे छोड़ दिया। शहर से कुछ आगे निकलने के बाद 12 रबीउल अव्वल की वजह से एक बहुत ही शानदार किस्म की महफिल मेलाद का इनेकाद किया गया था, जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद शिरकत कर रही थी। इसके मनाजिर मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिए। आखिरकार मेरा यह थका देने वाला दिन अपने इख्तिताम को पहुँचा और अल्लाह के फजल से मैं सही सलामत अपने घर पहुँच गया।